Hello everyone. So today's topic is articles and ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ ਵੀ ਆਰਟੀਕਲਸ ਹੁੰਦੇ ਕੀ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਪ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਯੂਸੇਜ ਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਫਸਟ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਆਰਟੀਕਲ। ਏ ਐਂਡ ਦ ਆਰ ਆਰਟੀਕਲਸ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਤਿੰਨ ਵਰਡ ਨੇ ਏ ਐਂਡ ਤੇ ਦ, ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਆਰਟੀਕਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਆਰਟੀਕਲਸ ਕੀ ਹੈ, ਆਰਟੀਕਲਸ ਨੂੰ ਦੋ ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡੈਫੀਨਿਟ ਆਰਟੀਕਲ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਹੁੰਦਾ ਇਨਡੈਫੀਨਿਟ ਆਰਟੀਕਲ। ਡੈਫੀਨਿਟ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਡੈਫੀਨਿਟ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਡੈਫੀਨਿਟ ਆਰਟੀਕਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਡੈਫੀਨਿਟ ਆਰਟੀਕਲ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤਾਜ ਮਹਿਲ। ਹੁਣ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ? ਡੈਫੀਨਿਟ ਆਰਟੀਕਲ ਦ। ਨੈਕਸਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਇਨਡੈਫੀਨਿਟ ਆਰਟੀਕਲ। ਹੁਣ ਇਨਡੈਫੀਨਿਟ ਆਰਟੀਕਲ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਹੁੰਦਾ ਐਨ। ਹੁਣ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਅਤੇ ਐਨ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੱਗਦਾ ਕੌਨਸੋਨੈਂਟਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਔਰ ਐਨ ਲੱਗਦਾ ਵੋਵਲਸ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਆਰਟੀਕਲਸ ਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਰਟੀਕਲਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਰਟੀਕਲਸ ਸਾਊਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਊਂਡ ਬੇਸਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਯੂਜੂਅਲੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੋਵਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ AEIOU। ਜਦੋਂ ਵੋਵਲਸ ਆ ਗਏ AEIOU, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਐਨ ਲਗਾ ਦਿਓ, ਸਾਰੇ ਵੋਵਲਸ ਅੱਗੇ ਐਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੌਨਸੋਨੈਂਟਸ ਬਚ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਲੱਗਦਾ ਆਰਟੀਕਲ ਬਟ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਆਰਟੀਕਲਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਏ ਅਤੇ ਐਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੌਨਸੋਨੈਂਟ ਐਂਡ ਵੋਵਲਸ ਤਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਹੀ, ਬਟ ਸਾਊਂਡਸ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨੇ ਆ ਬਿਕਾਜ਼ ਸਾਊਂਡਸ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਸਲਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਥੋਰਲੀ ਰੀਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆਰਟੀਕਲਸ ਹੁੰਦੇ ਕੀ ਹੈ। An article is used before a noun in the absence of which an article can't be used। ਹੁਣ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਰਟੀਕਲ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਬਿਫੋਰ ਅ ਨਾਊਨ, ਯਾਨੀ ਨਾਊਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਨ ਦ ਐਬਸੈਂਸ ਆਫ ਵਿਚ ਐਨ ਆਰਟੀਕਲ ਕਾਂਟ ਬੀ ਯੂਜ਼ਡ, ਯਾਨੀ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਊਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਰਟੀਕਲ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਐਕਸੀਲੈਂਟ। ਹੁਣ ਇਸ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆਰਟੀਕਲ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਹੀ ਏ, ਨਾ ਹੀ ਐਨ, ਨਾ ਹੀ ਦ। ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾਊਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਨਾਊਨ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਐਕਸੀਲੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗਾ ਐਡਜੈਕਟਿਵ। ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ। ਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਊਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਰਟੀਕਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਨੈਕਸਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਬੀ ਦੇਖੋ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਐਨ ਐਕਸੀਲੈਂਟ ਸਟੂਡੈਂਟ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗੇਨ ਸ਼ੀ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਨਾਊਨ ਹੈ, ਐਕਸੀਲੈਂਟ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਡਾ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਹੈ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਬਟ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਰਡ ਹੋਰ ਐਡ ਕਰਤਾ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਸਟੂਡੈਂਟ। ਹੁਣ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਡਾ ਨਾਊਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨਾਊਨ ਹੈ ਤਾਂ ਆਰਟੀਕਲ ਐਨ ਐਡ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਰਟੀਕਲ ਐਨ ਐਡ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਕੀਤਾ ਐਕਸੀਲੈਂਟ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕੀਤਾ, ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕੀਤਾ। ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਰਟੀਕਲਸ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਫਿਕਸਡ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਇਮੀਡੀਏਟ ਨਾਊਨ ਤੋਂ ਬਿਫੋਰ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਹੋਣਗੇ। ਨੋ, ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਐਕਸੀਲੈਂਟ ਐਂਡ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕੋਈ ਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ, ਕੋਈ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਜਦੋਂ ਆਰਟੀਕਲ ਕਿਤੇ ਫਿਟ ਇਨ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੀ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਦੇਖਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੀ ਸੈਂਸ ਬਣਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਐਨ ਐਕਸੀਲੈਂਟ ਸਟੂਡੈਂਟ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਯੂਜ਼ ਆਫ ਇਨਡੈਫੀਨਿਟ ਆਰਟੀਕਲਸ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਯੂਸੇਜ ਕੀ ਹੈ ਇਨਡੈਫੀਨਿਟ ਆਰਟੀਕਲਸ ਦਾ? ਇਨਡੈਫੀਨਿਟ ਆਰਟੀਕਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਸੀ ਏ ਅਤੇ ਐਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਯੂਸੇਜ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਏ ਔਰ ਐਨ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ਡ ਬਿਫੋਰ ਇਨਡੈਫੀਨਿਟ ਸਿੰਗੂਲਰ ਕਾਊਂਟੇਬਲ ਨਾਊਨਸ, ਯਾਨੀ ਇਨਡੈਫੀਨਿਟ ਅੱਗੇ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਗਿਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਡਿਫਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸਿੰਗੂਲਰ ਸਿੰਗਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਐਂਡ ਕਾਊਂਟੇਬਲ ਨਾਊਨਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਊਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਚੇਅਰ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਚੇਅਰ ਹੈ ਉਹ ਸਿੰਗੂਲਰ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਊਂਟੇਬਲ ਨਾਊਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਆਰਟੀਕਲ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹ ਆਰਟੀਕਲ। ਇਹ ਆਰਟੀਕਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਚੇਅਰ ਹੈ ਚ ਸਾਊਂਡ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਚ ਦਾ, ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਵਰਡ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗਾ ਕੌਨਸੋਨੈਂਟ, ਔਰ ਕੌਨਸੋਨੈਂਟ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਆਰਟੀਕਲ ਅ। ਸੈਕਿੰਡ ਹੈਗਾ ਸ਼ੀ ਸੈਂਗ ਅ ਸੌਂਗ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੌਂਗ ਆ ਗਿਆ, ਸਿੰਗੂਲਰ ਹੈ ਐਂਡ ਕਾਊਂਟੇਬਲ ਹੈ, ਸਿੰਗਲ ਸੌਂਗ ਹੈ, ਸੋ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਆਰਟੀਕਲ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਅ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਊਂਡ ਕੱਢ ਰਹੇ ਸ ਦਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੋਵਲ ਸਾਊਂਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਜੇਕਰ ਤਾਂ ਸੌਂਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਵਲ ਸਾਊਂਡ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਆਰਟੀਕਲ ਐਨ ਪਲੇਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੌਨਸੋਨੈਂਟ ਹੈ, ਸਾਊਂਡ ਵੀ ਕੌਨਸੋਨੈਂਟ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਆਰਟੀਕਲ ਯੂਜ਼ ਹੋਏਗਾ ਅ। ਸੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਐਨ ਅੰਬਰੇਲਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੰਬਰੇਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਵਰਡ ਦੇਖੋ ਅੰਬਰੇਲਾ ਦਾ, ਅੰਬਰੇਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਸਟ ਵਰਡ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਯੂ, AEIOU, ਯਾਨੀ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੋਵਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵੋਵਲਸ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਰਟੀਕਲ ਯੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਆਰਟੀਕਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਨਾਊਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਿਨਾਂ ਨਾਊਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਰਟੀਕਲ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਦੋ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਯੂਸੇਜ ਕੀ ਹੈ। ਯੂਜ਼ ਆਫ ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ ਆਰਟੀਕਲ, ਇਹ ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ, ਸਿੰਗੂਲਰ ਅਤੇ ਕਾਊਂਟੇਬਲ ਨਾਊਨਸ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਸਲਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਰਾਂਗੇ ਬਿਟਵੀਨ ਏ ਅਤੇ ਐਨ ਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਏ ਹੈ ਇਹ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੌਨਸੋਨੈਂਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਂਡ ਸਾਊਂਡਸ, ਅਤੇ ਐਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੋਵਲ ਸਾਊਂਡਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। A is used before consonant sounds and an is used before vowel sounds AEIOU। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਰਡਸ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟਾਰਟ AEIOU ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਵੋਵਲ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਊਂਡ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕੌਨਸੋਨੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੋਵਲ ਸਾਊਂਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਾਊਂਡ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇਕਰ ਤਾਂ ਸਾਊਂਡ ਕੌਨਸੋਨੈਂਟ ਹੈ ਤਾਂ ਆਰਟੀਕਲ ਆਏਗਾ ਅ, ਔਰ ਜੇਕਰ ਸਾਊਂਡ ਵੋਵਲ ਹੈ ਤਾਂ ਆਰਟੀਕਲ ਆਏਗਾ ਐਨ। ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, $1 ਨੋਟ, $1 ਨੋਟ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਵਰਡ 1 ਹੈ ਇਹ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਓ ਤੋਂ, AEIOU ਯਾਨੀ ਵੋਵਲ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 1 ਨੂੰ ਬੋਲਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਸਾਊਂਡ ਤਾਂ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਸਾਊਂਡ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਵ ਦਾ, ਵਾਵੇ ਦਾ ਸਾਊਂਡ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ $1 ਨੋਟ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਊਂਡ ਕੌਨਸੋਨੈਂਟ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕੌਨਸੋਨੈਂਟ ਸਾਊਂਡ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਆਰਟੀਕਲ ਲਗਾਉਣਾ ਏ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਲੱਗ ਗਿਆ $1 ਨੋਟ। ਸੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ $1 ਨੋਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਐਨ $1 ਨੋਟ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਨੈਕਸਟ ਯੂਨੀਅਨ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੋਵਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਯੂ ਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਊਂਡ ਹੈ ਯੂ, ਉਹ ਵੋਵਲ ਸਾਊਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੋਵਲ ਸਾਊਂਡ ਯੂ ਦਾ ਅ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਅੰਬਰੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੰਪਾਇਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਯੂ ਸਾਊਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾ ਹੀ ਯੂਨੀਅਨ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਇਹ ਵੋਵਲ ਸਾਊਂਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਇਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕੌਨਸੋਨੈਂਟ ਸਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਇਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਲਗਾਇਆ ਆਰਟੀਕਲ ਅ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਯੂਨਿਟ ਆ ਗਿਆ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਅਸੈਂਬਲੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਡ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮ ਨੂੰ ਦੇਖੋ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਊਂਡ ਆਏਗਾ ਮ ਦਾ, ਮੈਂਬਰ, ਮੈਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੌਨਸੋਨੈਂਟ ਸਾਊਂਡ ਹੈ ਤਾਂ ਆਰਟੀਕਲ ਲੱਗੇਗਾ ਅ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਈਅਰ, ਯੂਰੋਪੀਅਨ, य ਸਾਊਂਡ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ य ਸਾਊਂਡ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ, ਈ ਦਾ ਸਾਊਂਡ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ, ਸੋ ਆਰਟੀਕਲ ਲੱਗੇਗਾ ਅ। ਔਰ ਈਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਈ, ਇਹਦਾ ਨਿਕਲਦਾ ਈਅਰ, य ਸਾਊਂਡ ਨਿਕਲਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਈ ਵਾਲਾ ਸਾਊਂਡ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ, ਸੋ ਆਰਟੀਕਲ ਲੱਗੇਗਾ ਅ। ਨੈਕਸਟ ਆਉਂਦੇ ਅਸੀਂ ਐਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਐਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅੰਬਰੇਲਾ। ਹੁਣ ਅੰਬਰੇਲਾ ਯੂ ਹੈ ਸਾਡਾ ਵੋਵਲ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਊਂਡ ਵੀ ਕੀ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ, ਵੋਵਲ ਸਾਊਂਡ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ। ਅੰਬਰੇਲਾ ਅ, ਜਦੋਂ ਯੂ ਦਾ ਸਾਊਂਡ ਅ ਨਿਕਲੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਰਟੀਕਲ ਐਨ। ਨੈਕਸਟ ਆਉਂਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਓਨੈਸਟ। ਓਨੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਐਚ ਹੈ, ਐਚ ਸਾਇਲੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਹੌਨੈਸਟ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਓਨੈਸਟ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਓਨੈਸਟ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਸਾਊਂਡ ਆ ਰਿਹਾ ਓ ਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਓ, ਔਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵੋਵਲ ਸਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਰਟੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਐਨ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ MLA, FIR,
SDO जिन्ने भी शॉर्ट फॉर्म्स होंदियां इन्हां वास्ते असी आर्टिकल हमेशा एन यूज़ करते हैं। एन एक्स-रे मशीन, एक्स ए इस चो साउंड निकल रहा है ए दा, ए साउंड निकल रहा है, दैट्स वाई दे अगे असी की यूज़ किया आर्टिकल एन। आई होप क्लीयर होएगा सारिਆਂ ਨੂੰ। सैकेंड पॉइंट आता है इन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसिस आफ्टर वॉट। हुण असी अपना आर्टिकल यूज़ करांगे अपने एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसिस दे बाद दे विच। वॉट एस्पैशली वर्ड आ गया जदों वॉट, उस तो बाद यूज़ करांगे स्पैसीफिकली इस वर्ड तो बाद। हुण एग्जाम्पल तुहानूं दित्ती है वॉट अ ग्रैंड बिल्डिंग। हुण इत्थे वॉट आ गया और लास्ट विच तुहानूं की दित्ता होया एक्सक्लेमेटरी पॉइंट दिता होया है। सो ये अगे तुसी वॉट तो बाद तुसी की यूज़ करना है आर्टिकल अ। इत्थे लिखा होया आफ्टर वॉट, वॉट दे बाद दे विच। सो आर्टिकल अ यूज़ करेंगे वॉट अ ग्रैंड बिल्डिंग। नैक्सट एग्जाम्पल हैगी है वॉट अ प्रिटी गर्ल। अगेन ये वॉट आ गया, एक्सक्लेमेटरी मार्क है और इस तो वॉट दे बाद तुसी की यूज़ करना है आर्टिकल अ। हुण इहदे विच की हुंदा है कि सारी जगह आर्टिकल अ नहीं यूज़ करना हुंदा। ये तुसी की चैक करोगे अपने आर्टिकल तो बाद दे विच आने वाला नाउन, वो नाउन का साउंड की है। हुण इत्थे ग्रैंड है, ग्रैंड नूं जदों मैं बोलांगी ग साउंड निकलदा है, वो साउंड हैगा साडा कॉन्सोनेंट साउंड है। क्योंकि वो कॉन्सोनेंट साउंड है तो आर्टिकल भी अ आएगा। सिमिलरली जदों मैं प्रिटी प्रोनाउंस करांगी प साउंड निकलेगा, कॉन्सोनेंट साउंड है तो आर्टिकल भी की आएगा आर्टिकल अ। नैक्सट एग्जाम्पल हैगी है वॉट अ ब्यूटीफुल मॉर्निंग। अगेन एक्सक्लेमेटरी मार्क आ गया, वॉट आ गया, इस तो बाद तुसी अपना आर्टिकल यूज़ करोगे किस नूं देख के, नाउन नूं देख के। हुण इत्थे ब्यूटीफुल है, ब्यूटीफुल मॉर्निंग है, इहदे विच साउंड की आ रहा है ब दा, ब्यूटीफुल ब कॉन्सोनेंट साउंड है। सो आर्टिकल की होएगा अ। नैक्सट पॉइंट दे विच आने आ इन प्लेस ऑफ पर इज़ बेसिकली आ साइन होंदा है 12 किलोमीटर पर आवर, 12 km पर आवर। हुण इहदे विच की हुंदा है जदों तुसी पर नहीं यूज़ करना उहदे विच तुहानूं एक ऑप्शन दे दिता गया, तुसी उहदी जगह की यूज़ कर सकते हो आर्टिकल यूज़ कर सकते हो। एग्जाम्पल दित्ती है शी कैन रन 12 किलोमीटर एन आवर। हुण इहदे विच यूजली असी पर यूज़ करते हुंदे आ, बट साडे कोल ऑप्शन है असी पर दी जगह की यूज़ कर सकते हैं आर्टिकल यूज़ कर सकते हैं। आर्टिकल यूज़ करने का सेम तरीका है, अपना तुसी नाउन देखोगे, नाउन का पहला वर्ड देखोगे, उहदा देखोगे तुसी साउंड देखोगे। हुण इहदे विच जिहड़ा आवर है, आवर दे विच साडा की है एच हैगा साइलेंट है, तो पिछे बचे आवर आ साउंड निकल रहा, आ साउंड साडा हुंदा है वॉवल साउंड हुंदा है। सो इहदे अगे आर्टिकल आ जाएगा एन। आई अर्न 20,000 अ मंथ। यूजली असी कहते हैं पर मंथ, बट हुण इत्थे असी पर नहीं यूज़ करना, आर्टिकल यूज़ करना है। तो ये मैं मंथ नूं देखांगी, मंथ म साउंड निकल रहा है, एम कॉन्सोनेंट ही साडा लैटर है पहला, तो कॉन्सोनेंट ही साडा साउंड निकल रहा है। सो आर्टिकल जिहड़ा यूज़ होएगा अ आर्टिकल। फोर्थ पॉइंट दे विच आंदा बिफोर अ प्रोफैशन। जदों असीं कोई भी किसी भी प्रोफैशन की गल करते हैं तो उस तो पहला असीं आर्टिकल यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल हैगी है शी इज़ अ टीचर, शी इज़ अ टीचर। अगेन इत्थे भी आर्टिकल तुसी अपना साउंड ते लैटर देख के यूज़ करोगे। ट फॉर टीचर, ट कॉन्सोनेंट ही साउंड आ रहा है तो साडा कॉन्सोनेंट ही लैटर है, सो आर्टिकल आएगा अ। ही इज़ अ मैनेजर, आर्टिकल अ। ही इज़ एन इंजीनियर। हुण इत्थे इंजीनियर आ गया, ई साडा वॉवल है और जदों मैं प्रोनाउंस कर दी है इंजीनियर, ए साउंड क्या आ गया, वॉवल साउंड आ गया। सो आर्टिकल किहड़ा यूज़ होएगा एन। सो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस दे विच आफ्टर वॉट पर दी जगह ते इन प्लेस ऑफ पर एंड बिफोर प्रोफैशन तुसी की यूज़ कर सकते हो अपना आर्टिकल। फिफ्थ पॉइंट दे विच आंदा है व्हेन अ वर्ब इज़ यूज्ड एज अ नाउन a/an इज़ यूज्ड बिफोर इट। हुण जिहड़े वर्ब हुंदे आ, वर्ब बेसिकली हुंदा है किरिया, किरिया मीनस एक्शन। जदों असीं एक्शन की गल करते हैं और उस एक्शन नूं एज अ नाउन यूज़ करिए, एक्शन नूं असीं एज अ यूज़ करना है नाउन, तो असीं उहदे अगे की लगाना है एक
ਆਰਟੀਕਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈਗੇ ਹੀ ਗੋਜ਼ ਫॉर ਅ ਵਾਕ ਡੇਲੀ। ਵਾਕ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵਾਕ ਇੱਕ ਐਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਵਰਬ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਟ ਇੱਥੇ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਐਨ ਮੈਂ ਨਾउन यूज़ कर रही हाँ। सो क्योंकि एज ए नाउन यूज़ कर रही हाँ तो ये अगे मैं की लगाऊंगी, एक आर्टिकल लगाऊंगी। इत्थे मैं आर्टिकल अ लगाया है। अ क्यों लगाया? क्योंकि जो मैं वॉक नूं देखदी हाँ तो W मेरा हैगा कॉन्सोनेंट लैटर है, और जो साउंड निकल रहा है वॉक, साउंड निकल रहा है, कॉन्सोनेंट ही साउंड निकल रहा है। सो ही गोज़ फॉर अ वॉक डेली। बी दे विच हैगा ही हैज़ गॉन फॉर अ राइड। ही हैज़ गॉन फॉर अ राइड, अगेन राइड करना। हुण ये एक एक्शन हो गया, पर इत्थे इनू एज ए नाउन यूज़ किया जा रहा है। सो ये अगे आर्टिकल लगेगा। सेम क्राइटेरिया है, राइड। आर तुहाडा की है? कॉन्सोनेंट ही लैटर है, और साउंड भी की दे रहा है, तो कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है। सो अ राइड। नैक्सट 6th पॉइंट दे विच आंदा है when a singular noun is used after many, rather, quite, such, then a/an is used before that noun। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿੰਗੂਲਰ ਨਾउन ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਨੀ, ਰਾਦਰ, ਕੁਆਇਟ, ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਰਟੀਕਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਦੈਨ a/an is used before that noun। ਸੋ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਉਸ ਨਾउन ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਆਰਟੀਕਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਮੈਨੀ, ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਵਰਡ ਆ ਗਿਆ ਮੈਨੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਮਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਡਾ ਨਾउन ਹੈ। ਵੁੱਡ ਵੈਲਕਮ ਸੱਚ ਅ ਰਿਫੋਰਮ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵਿਮਨ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ ਲੈਟਰ ਦੇਖਾਂਗੀ W, ਕੌਨਸੋਨੈਂਟ ਲੈਟਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਔਰ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਊਂਡ ਹੈ, ਸਾਊਂਡ ਵੀ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕੌਨਸੋਨੈਂਟ ਸਾਊਂਡ ਆ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਮੈਨੀ ਅ ਵੂਮਨ, ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਆਰਟੀਕਲ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਅ ਆਰਟੀਕਲ। ਇਟ ਵਾਜ਼ ਰਾਦਰ ਅ ਪਿਟੀ, अगेन रादर वर्ड रादर आ गया। उस तो बाद मैं दिखांगी अपना नाउन हैगा पिटी। प साउंड है, प लैटर हैगा, कॉन्सोनेंट लैटर है, कॉन्सोनेंट ही साउंड है, सो आर्टिकल आएगा अ। नैक्सट एग्जाम्पल है इट वॉज क्वाइट एन इम्पॉसिबल टास्क। क्वाइट वर्ड आ गया। ये जिन्ने भी इतने सारे वर्ड्स लिखे हुए हैं, इन्हां दे बाद दे विच जिहड़ा नाउन आंदा है उस तो पहला तुसीं यूज़ करना है आर्टिकल। सो क्वाइट आ गया, इस तो बाद दे विच नाउन आ रहा है इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल आई तुहाडा हैगा वॉवल हैगा, तो जिहड़ा साउंड दे रहा है ई, वॉवल ही साउंड दे रहा है, सो ये अगे लग जाएगा आर्टिकल एन। नैक्सट हैगा करियर एज इंस्टीट्यूट विच तुहानूं लाइव कोर्सिस प्रोवाइड किए जाते हैं। PSTET CTET वास्ते 300+ लाइव क्लासेस ने, 200+ PDF, 6000+ प्रैक्टिस क्वेश्चनस ने। एंड जो कोई भी इन्फॉर्मेशन लेना चाहता है या किसी तरह की भी किसी को क्वेरी है या कोई भी मटीरियल तुसी बाय करना चाहते हो, तो तुसी गिवन नंबर्स दे विच कॉल कर सकते हो, अपनी क्वेरी सॉल्व कर सकते हो, एंड वी विल ऑलवेज रिस्पॉन्स ऑन टाइम। थैंक यू। नैक्सट आंदा है पॉइंट 7, इफ, सो, एज, टू, हाउ, क्वाइट आर यूज बिफोर एडजेक्टिव, then a/an यूज आफ्टर दैट एडजेक्टिव। ਹੁਣ एडजेक्टिव पहली गल करते हैं, पर एडजेक्टिव की होंदा है? एडजेक्टिव होंदा है विशेषता, विशेषण। ਜਦੋਂ भी किसी चीज़ की खासियत बारे गल हो रही होवे, विशेषता बारे गल हो रही होवे, उदों असीं एडजेक्टिव यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं वर्ड यूज़ करा इंटैलीजेंट, या मैं यूज़ करा स्मार्ट। हुण ये की ने साडे एडजेक्टिव ने। पॉइंट ये कह रहा है कि अगर वर्ड्स तुहाडे कोल आ जाण सो, एज, टू, हाउ, क्वाइट, अगर ये वर्ड्स तुहाडे किस सेंटेंस दे विच किसी भी एडजेक्टिव तो पहला यूज़ होए ने या पहला यूज़ हो रहे ने, तो उस एडजेक्टिव के बाद दे विच तुसीं की यूज़ करना है? अपना आर्टिकल यूज़ करना है। हुण आपां एग्जाम्पल नाल समझदे हां किवें। एग्जाम्पल हैगे इट इज़ टू हैवी अ पार्सल फॉर मी टू कैरी। सब तो पहला आपां एडजेक्टिव फाइंड करते हैं। एडजेक्टिव हैगा साडा हैवी, यानी पार्सल की विशेषता की है? वो भारी है, हैवी। उस तो पहला मेरा वर्ड आ रहा है टू। आप इन्हां ही वर्ड्स दे विचों देखना है। उस तो पहला मेरा वर्ड आ रहा है टू, तो उस एडजेक्टिव तो बाद दे विच तुसीं की यूज़ करना है? एक आर्टिकल यूज़ करना है। इत्थे मैं आर्टिकल अ यूज़ किया है, किस नूं देख के? अपने नाउन नूं देख के। हमेशा याद रखना है आर्टिकल्स यूज़ होंदे हैं नाउन्स वास्ते, अगर नाउन नहीं है तो आर्टिकल नहीं आएगा। सो इत्थे मेरा नाउन हैगा पार्सल,
ਜਦੋਂ मैं पार्सल ਨੂੰ बोलांगी ਤਾਂ मेरा साउंड निकलेगा प साउंड, यानी कॉन्सोनेंट साउंड निकल गया। और जो मेरा फर्स्ट लैटर है वो भी कॉन्सोनेंट है, सो आर्टिकल यूज होएगा अ आर्टिकल। नैक्सट हैगा शी इज़ एज ब्यूटिफुल अ गर्ल एज यू आर लाइकली टू मीट। हुण इहदे विच वर्ड आ गया साडे कोल एज आ गया, एज इहदे विच सैकेंड नंबर ते दिता होया। एंड ब्यूटिफुल की है, एडजैक्टिव है, विशेषता है, उस लड़की की विशेषता है कि वो बहुत सोहनी है। इत्थे मेरा नाउन आ गया गर्ल, अगेन कॉन्सोनेंट साउंड, कॉन्सोनेंट वर्ड, आर्टिकल अ। हुण पॉइंट 7 तक तो आपां पढ़िया भी असी जिहड़ा आर्टिकल्स ने कित्थे कित्थे यूज़ कर सकते हैं। नैक्सट आंदा कित्थे नहीं यूज़ करना। नंबर 1 हैगा प्लूरल नाउन यानी अगर एक तो वध नाउनस की गल हो रही है तो उत्थे असी अपना आर्टिकल नहीं यूज़ करना। फॉर एग्जाम्पल इसी सेंटेंस दे विच आपां एक गल कर लें गर्ल, इत्थे एक सिंगलर नाउन है, एक कुड़ी की गल हो रही है, उहदे अगे मैं आर्टिकल यूज़ कर लिया। अगर इत्थे गर्ल की जगह गर्ल्स हुंदा तां फिर इहदे अगे आर्टिकल नहीं यूज़ होना सीगा। सो प्लूरल नाउन अगे असीं आर्टिकल नहीं यूज़ करते। सैकेंड हुंदा प्रॉपर नाउन यानी किसी दे नेम अगे असीं कभी भी अ राम एन राम नहीं कहते या अ शाम एंड शाम। सो किसी भी प्रॉपर नेम अगे आर्टिकल नहीं यूज़ करना। थर्ड हैगा अनकाउंटेबल नाउन, यानी जिहड़े नाउन्स ने जिन्हां नूं तुसीं काउंट नहीं कर सकते। एग्जाम्पल एडवाइस, असीं एडवाइस नहीं काउंट कर सकते। सजैशन नूं काउंट नहीं कर सकते। बैगेज, लगेज, ये सारी चीज़ों नूं असीं काउंट नहीं कर सकते। ये कुछ एग्जाम्पल्स ने, अदरवाइज कोई भी अनकाउंटेबल नाउन है तुसीं उस अगे आर्टिकल नहीं यूज़ करना। ये सी तुहाडा इनडेफिनिट आर्टिकल ए एंड एन। नैक्सट आपां आंदे हां यूज़ ऑफ डेफिनिट आर्टिकल द। हुण डेफिनिट आर्टिकल द की गल करते हैं। द दे विच की है, द इज़ यूज बिफोर डेफिनेट नाउन्स, द नाउन्स वी कैन विजुअलाइज और दैट हैज़ ऑलरेडी बीन इंट्रोड्यूस्ड। कहते जो डेफिनेट आर्टिकल है ना वो असीं डेफिनेट नाउन्स अगे यूज़ करते हैं। ये वो नाउन्स होंदे हैं जिन्हां नूं असीं विजुअलाइज कर सकते हैं, मतलब जदों असीं उन्हां बारे सोचते हैं तो साडे माइंड दे विच एक पिक्चर आ जाती है। और दैट हैज़ ऑलरेडी बीन इंट्रोड्यूस, मतलब जिन्हां बारे सब नूं पता है। एग्जाम्पल है, बहुत सिंपल एग्जाम्पल है ताज महल। ਹੁਣ ताज महल एक डेफिनेट जगह है, एक डेफिनेट मोन्यूमेंट है, डेफिनेट नाउन है। और ऐसी जो मैं ताज महल का नाम लैंदी तो सारे के मन के एक पिक्चर आ जाती है कि ताज महल किवें लगता है। एंड दैट हैज़ ऑलरेडी बीन इंट्रोड्यूस, और हर बंदे नूं उस बारे पता है, एवरीबडी नोज़ भी ताज महल है। सो उस अगे असी की यूज़ करांगे डेफिनेट आर्टिकल द। एग्जाम्पल हैगी है आई फाउंड अ बैग, द बैग कंटेन्ड अ कॉइन, द कॉइन वॉज मेड ऑफ गोल्ड। सब तो पहला आप इत्थे तक देखते हैं। आई फाउंड अ बैग यानी मैनू एक बैग मिलिया। हुण इहदे विच किसी भी चीज़ की विशेषता नहीं है, सिंपल है, एक बैग मिलिया है, बैग दे विच कुछ खास नहीं है। द बैग कंटेन्ड अ कॉइन, हुण उस बैग दे विच मैनू कॉइन मिलिया है। सो इहदे विच की है कि मैं स्पैसीफिकली हुण उस बैग की गल कर रही हाँ। हुण इस दे विच की है कि स्पैसीफिकली उस बैग की गल हो रही है। सो दैट बैग कंटेन्ड अ कॉइन, हुण बहुत सारे बैग्स होंगे पर वो बहुत सारे मैं एक बैग की गल कर रही हूँ जिहदे विच मैनूं कॉइन मिले। सो ये स्पैसीफाइड हो गया। तो ये बैग के अगे मैं की लगाया आर्टिकल द। ये अगे क्यों नहीं लगाया सी, क्योंकि एक सिंपल बैग की गल हो रही सी। इस बैग के विच कुछ खास नहीं सी, कुछ डेफिनेट नहीं सीगा, एक नॉर्मल बैग सी। सो आर्टिकल अ लगाया सी। नैक्सट आ जाओ द कॉइन वॉज मेड ऑफ गोल्ड। हुण जिहड़ा कॉइन है वो गोल्ड का बनिया सी। हुण इहदे विच स्पैसीफाइड मैं करता कि कॉइन है वो गोल्ड का बनया। हुण कॉइन तो बहुत सारी चीज़ों दे बने होंदे हैं, सिल्वर का भी हुंदा है, प्लैटिनम का भी हुंदा है, पर इत्थे की ये गल हो रही है भी गोल्ड का बनया होया है। सो स्पैसीफाई कर दिता गया, दैट्स वाई आर्टिकल द। नैक्सट एग्जाम्पल हैगी है दिस इज़ द होटल वेयर शी लिव्स। हुण वो कह रहे हैं भी ये वाला होटल है जिथे वो रहिंदी है। सपोज करो एक लाइन में 10 होटल्स ने, 10 विचों मैं एक नूं पॉइंट आउट करके कहनी है भी आ वाले होटल में वो रहिंदी है। सो यानी मैं डेफिनेट करके तुहानूं दसता भी आ वाला पर्टिकुलर आ वाला होटल है, क्योंकि कोई चीज़ डिफाइन कर दी गई है, डेफिनेट हो गया तो वो अगे असीं आर्टिकल द प्लेस करांगे। द मैन इन ब्लूज
द मैन इन ब्लू ड्रैस इज़ माई ब्रदर। हुण वो कह रही है भी जिहड़ा बंदा ब्लू, जिसने ब्लू पाई है, ब्लू ड्रैस पाई है, वो मेरा भरा है। हो सकते 4-5 जाने खड़े होण, उन्हां विचों मैं स्पैसीफाई करके कह रही हूँ भी ब्लू वाला मेरा ब्रदर है। सो उस मैन अगे असीं की यूज़ करांगे डेफिनेट आर्टिकल द। नैक्सट आंदा है साडे कोल यूज्ड। असीं आर्टिकल जिहड़ा द है वो किस किस जगह या किस किस चीज़ां अगे असीं यूज़ कर सकते हैं। सब तो पहले एग्जाम्पल इहदी हैगी है रिवर्स। हुण कोई भी रिवर है ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ आर्टिकल यूज़ कर सकते हो। एग्जाम्पल हैगी है द गंगा, द यमुना। सीज, द अरेबियन सी, द साउथ चाइना सी, इन्हां अगे भी तुसी आर्टिकल द यूज़ कर सकते हो। ओशनस अगे यूज़ कर सकते हो, द इंडियन ओशन, द पैसिफिक ओशन, उन्हां अगे आर्टिकल द यूज़ कर सकते हो। ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, द अंडेमान एंड निकोबार आइलैंड्स। हुण असीं कल्ला अंडेमान एंड निकोबार आइलैंड्स नहीं कहांगे, ਉਹਦੇ अगे डेफिनेट आर्टिकल द लगावांगे। रीजन बीइंग क्योंकि वी हैव बीन गिवन कि असी आइलैंड्स, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स अगे आर्टिकल द यूज़ करना है। हैवनली ऑब्जैक्ट्स, हैवनली ऑब्जैक्ट्स होंगे जिवें सन, अर्थ, मून, यूनीवर्स, उस होंगे हैवनली ऑब्जैक्ट्स। उन्हें अगे भी तुसी आर्टिकल द यूज़ करोगे। इन्हां विच सारे प्लैनट्स आ जाते हैं, द वीनस आ जाएगा, द जुपिटर, द सैटर्न। सो आर्टिकल द विल बी यूज्ड। नैक्सट आ गया डेजर्ट। डेजर्ट आ गया रेगिस्तान। हुण कोई भी रेगिस्तान आ गया, उन्हें अगे तुसी आर्टिकल द यूज़ करना है। द सहारा डेजर्ट, थार डेजर्ट। नैक्सट आंदा अपने कोल कनाल्स। हुण कनाल्स कनाल्स दे अगे असीं यूज़ करांगे आर्टिकल द। इहदे विच तुहानूं एग्जाम्पल दित्ती है स्यूज़ कनाल दी। स्यूज़ कनाल है, भाखड़ा कनाल है, सो आर्टिकल द। न्यूज़पेपर, मैगजीन्स अगे यूज़ कर सकते हैं, हिंदू, वोग, इंडियन एक्सप्रैस, द वॉशिंगटन पोस्ट। होली बुक्स अगे कर सकते हैं, गीता, कुरान, बाइबल, उन्हें अगे तुसी आर्टिकल द यूज़ कर सकते हो। कोई भी हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट है, रेड फोर्ट है, ताजमहल है, द कुतुब मीनार है, उन्हें अगे तुसी आर्टिकल यूज़ कर सकते हो। लोटस टैंपल है। पोस्ट, पोस्ट यानी कोई भी किसी की डेजिग्नेशन होंदी है। फॉर एग्जाम्पल द चेयरमैन, द डायरैक्टर। यूजली जो असीं स्कूल दे विच भी आपां या किते भी ऑफिशियली आपां कोई भी एप्लीकेशन लिखते हैं किसी नूं भी, सो जिहदी भी जो डेजिग्नेशन होंदी सी उहदे अगे आर्टिकल द यूज़ करते हैं। सो कोई भी पोस्ट है उहदे अगे आर्टिकल द यूज़ करना है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स आ गए, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स अगे तुसी आर्टिकल द यूज़ करना है। इहदे च एग्जाम्पल दे तबला, वायलिन, गिटार। डायरैक्शनस अगे यूज़ कर सकते हो, ईस्ट, वैस्ट, साउथ, नॉर्थ, उन्हें अगे आर्टिकल द यूज़ करना है। माउंटेन रेंजिज वास्ते यूज़ कर सकते हो, द हिमालयाज, द एंडीज, द एल्प्स। यूनीक थिंग्स होंदियां ने जिहड़ी 1 in a million होनियां, कोई भी ऐसी चीज़ होवे जिहड़ी होर किते भी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल द माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट यूनीक है। आईफिल टावर यूनीक है। सो इन्हें अगे तुसीं आर्टिकल द यूज़ कर सकते हो। फिर आंदा कमेटी, क्लब या कोई भी ट्रस्ट। एग्जाम्पल यूनाइटेड नेशन है, द लायंस क्लब है, द WHO है, इन्हें अगे तुसीं की यूज़ कर सकते हो डेफिनेट आर्टिकल द। या प्लूरल नेम ऑफ कंट्रीज़। हुण इहदे विच तुहानूं 2 एग्जाम्पल्स दित्तियां ने, एक हैगी है फिलीपीनस ते दूसरी हैगी है नैदरलैंड्स। फिलीपीनस एशिया दे विच आंदी है, नैदरलैंड्स यूरोप दे विच। सो क्योंकि एक कंट्रीज़ दा नेम प्लूरल है तो उन्हें अगे तुसीं डेफिनेट आर्टिकल द यूज़ कर सकते हो। नैक्सट थर्ड पॉइंट दे विच आंदा है यूज्ड बिफोर सुपरलेटिव डिग्री। हुण कहंदे भी जिहड़ा डेफिनेट आर्टिकल है तुसीं सुपरलेटिव डिग्री तो पहला भी यूज़ कर सकते हो। सुपरलेटिव डिग्री वो होंदी है जदों असीं की करदे हां, चॉइस करदे हां। फॉर एग्जाम्पल एक क्लास दे विच 10 बच्चे हैं, 10 दे 10 इंटैलीजेंट है, पर उन्हां विच एक ऐसा बच्चा है जिहड़ा ज़्यादा इंटैलीजेंट है। सो इहदे विच कंपैरिजन नहीं होया बट चॉइस होगी। सो उस चॉइस वास्ते जो भी सुपरलेटिव डिग्री का वर्ड होएगा उहदे वास्ते की है, तुसीं उस तो पहला डेफिनेट आर्टिकल द यूज़ करोगे। सुपरलेटिव डिग्री द वर्ड यूजली एंड्स विद EST। अगर EST दे नाल नहीं एंड हो रहे, फॉर एग्जाम्पल नॉर्मल वर्ड है कोई ब्यूटीफुल है, तो उहदे अगे असीं मोस्ट लगा दिंदे हां ताकि बन जांदा हो सुपरलेटिव। सो एग्जाम्पल तुहानूं दित्ती है, ही इज़ द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ आवर क्लास। हुण इहदे सुपरलेटिव तुहाडा वर्ड हैगा बेस्ट। सो ये अगे असीं की लगाया डेफिनेट आर्टिकल द।
ਨੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਇਫ ਪੋਜੈਸਿਵ ਪ੍ਰੋਨਾउन ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ਡ ਬਿਫੋਰ ਸੁਪਰਲੇਟਿਵ ਡਿਗਰੀ then the is not used. possessive pronoun, possessive ਦਾ ਮਤਲਬ possession ਦਾ ਮਤਲਬ ownership। ਜਦੋਂ ਵੀ possessive pronoun ਆ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ definite article the ਨਹੀਂ यूज़ ਕਰਨਾ। एग्जाम्पल ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਰਾਮ इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। सो माई ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ possessive pronoun, ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਰਾਮ ਮੇਰਾ best friend ਹੈ, ਉਹਦਾ possession ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡੈਫੀਨੇਟ ਆਰਟੀਕਲ ਦ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ। ਰਾਮ ਇਜ਼ ਦ ਮਾਈ ਬੈਸਟ ਫਰੈਂਡ ਜਾਂ ਰਾਮ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਦ ਬੈਸਟ ਫਰੈਂਡ ਟੋਟਲੀ ਰੋਂਗ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪੁਆਇੰਟ 4 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਵੈਨ ਅ ਚੋਇਸ ਇਜ਼ ਮੇਡ ਆਊਟ ਆਫ 2 ਦੈਨ ਦ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ਡ ਬਿਫੋਰ ਅ ਕੰਪੈਰੇਟਿਵ ਡਿਗਰੀ ਆਲਸੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਇਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਡੈਫੀਨੇਟ ਆਰਟੀਕਲ ਦ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨਾਲ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿਵੇਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੀ ਇਜ਼ ਦ ਸਟਰੋਂਗਰ ਆਫ ਦ 2 ਪਲੇਅਰਸ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ 2 ਪਲੇਅਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦੋਨੋਂ ਪਲੇਅਰਸ ਹੀ ਵਧੀਆ ਨੇ, ਦੋਨੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਦੋਨੋਂ ਪਲੇਅਰ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਣ, ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਪਲੇਅਰ ਏ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗਰ ਹੈ ਉਹ। ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚੋਇਸ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਕੰਪੈਰੇਟਿਵ ਵਰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਆਏਗਾ ਡੈਫੀਨੇਟ ਆਰਟੀਕਲ ਦ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਕੰਪੈਰੇਟਿਵ ਕਿਹੜਾ ਵਰਡ ਹੈ। ਕੰਪੈਰੇਟਿਵ ਵਰਡਸ ਯੂਜਲੀ ਐਂਡ ਵਿਦ ER, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ER ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਬੈਟਰ, ਸਟਰੋਂਗਰ, ਗ੍ਰੇਟਰ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਹੀ ਵਰਡ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਪਿੱਛੇ ਤਾਂ ER ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੈਨ ਵਾਟ ਟੂ ਡੂ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਮੋਰ ਲਗਾ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਮੋਰ ਲਗਾ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਕੰਪੈਰੇਟਿਵ ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰਲੇਟਿਵ ਡਿਗਰੀ ਅਤੇ ਕੰਪੈਰੇਟਿਵ ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਡੈਫੀਨੇਟ ਆਰਟੀਕਲ ਦ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ when an adjective is used after a proper noun and it qualifies that noun then the is used before that adjective। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਾਊਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਉਸ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਡੈਫੀਨੇਟ ਆਰਟੀਕਲ ਦ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਯਾਨੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਗ੍ਰੇਟ। ਕਿਹਦੀ ਹੈ, ਅਸ਼ੋਕਾ। ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਾਊਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਨੇਮ ਹੋ ਗਿਆ ਅਸ਼ੋਕਾ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਸ ਗ੍ਰੇਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ, ਡੈਫੀਨੇਟ ਆਰਟੀਕਲ ਦ। ਸਿਮਿਲਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਾਊਨ ਹੈ। ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਵਾਰੀਅਰ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਵਾਰੀਅਰ, ਤਾਂ ਉਸ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਡੈਫੀਨੇਟ ਆਰਟੀਕਲ ਦ। ਪੁਆਇੰਟ 6 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ if a noun represents any quality inside a person then the is used। ਅਗਰ ਕੋਈ noun represent ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ person ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ quality, inside quality, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ use ਕਰਨਾ ਹੈ, definite article the। example ਦਿੱਤੀ ਹੈ the judge in him prevailed upon the husband। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਇਨ ਰਿਐਲਿਟੀ ਉਹ ਜੱਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਟ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਜੱਜ, ਯਾਨੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਸਟਿਸ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੀਵੇਲਡ ਅਪੋਨ ਹਰ ਹਸਬੈਂਡ। ਸੋ ਉਸ ਨਾउन ਦੇ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲਗਾਓਗੇ, ਡੈਫੀਨੇਟ ਆਰਟੀਕਲ ਦ। ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ ਦ ਮੋਰੈਲਿਸਟ ਐਂਡ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਰਿਵੋਲਟਡ ਅਗੇਂਸਟ ਦ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼। ਹੁਣ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਮੋਰੈਲਿਸਟ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੋਰੈਲਿਸਟ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾउन ਦੇ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲਗਾਓਗੇ, ਡੈਫੀਨੇਟ ਆਰਟੀਕਲ ਦ, ਇਨਸਾਈਡ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਾਸਤੇ। ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਆਉਂਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਇਫ 2 or more nouns are used for a single person or thing then the is used before first noun only। ਹੁਣ ਅਗਰ ਕਹਿੰਦੇ 2 ਜਾਂ 2 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾउन ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਪਰਸਨ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨੋਂ ਨਾउन्स ਦੇ ਅੱਗੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆਰਟੀਕਲ ਦ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਉਨ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲੱਗੇਗਾ, ਔਰ ਉਹ ਇੱਕ ਕਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਦ ਸੈਕਰੇਟਰੀ ਐਂਡ ਟ੍ਰੈਜਰਰ ਵਾਜ਼ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦੇਅਰ। ਹੁਣ ਸੈਕਰੇਟਰੀ ਤੇ ਟ੍ਰੈਜਰਰ ਦੋ ਨਾउन्स ਹੋ ਗਏ, ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਪਰਸਨ ਲਈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਵੀ ਸਿੰਗਲ ਪਰਸਨ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਸੈਕਰੇਟਰੀ ਅੱਗੇ ਦ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਟ੍ਰੈਜਰਰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਪਰਸਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
और अगर द सैक्रेटरी एंड द ट्रैजरर लिखदा मैं तो इट मीनस दो परसनस की गल हो रही है। अगर ट्रैजरर अगे भी द प्रेजेंट हुंदा तो दो डिफरेंट परसन हो जाने सीगे, बट क्योंकि एक दे अगे है, फर्स्ट वन दे अगे है, तो सिंगल परसन की गल हो रही है। सो सिंगल यूज बिफोर फर्स्ट नाउन ओनली। हुणे सिंगल परसन है, दो क्वालिटीज़ ने, दो नाउन्स ने, इक्को ही बंदे वास्ते यूज हो रही ने, तो मैं डेफिनेट आर्टिकल सब तो पहले वाले अगे लगावांगी। नेक्स्ट आउंदा है पॉइंट 8, when two comparative degrees are directly or inversely proportional to each other then the is used before comparative degree। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਨਵਰਸਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ? ਡੈਫੀਨਿਟ ਆਰਟੀਕਲ ਦ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨਾਲ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿਵੇਂ। ਦ ਮੋਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਯੂ ਯੂਜ਼ ਦ ਹਾਇਰ ਯੋਰ ਬਿੱਲ ਵਿਲ ਬੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ ਉਨਾ ਹੀ ਬਿੱਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਵੱਡਾ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਦ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੀ ਆ ਗਿਆ? ਦ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਕੰਪੈरेटिव ਹਾਇਰ ਕੰਪੈरेटिव ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਵਰਡ ਹੈ। मोर, मोर भी काहदा है? कंपैरेटिव दा। सो दोनों कंपैरेटिव डिग्री दे वर्ड्स आ गए। सो दोनों आगे तुसी की यूज़ करना है? डेफिनेट आर्टिकल द हायर यू राइज द ग्रेटर यू फॉल। हुण एक ही है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, वो कह रहा है हायर कंपैरेटिव डिग्री वर्ड तो इधर हैगा ग्रेटर अगेन कंपैरेटिव डिग्री वर्ड, तो दोनों आगे तुसी की यूज़ करना है? डेफिनेट आर्टिकल द यूज़ करोगे। नैक्सट आंदा है वेयर द इज़ नॉट यूज्ड। हुण उत्थे तक तो असीं पढ़िया भी असीं कित्थे कित्थे द डेफिनेट आर्टिकल द यूज़ कर सकते हैं या करना है। नैक्सट आंदा कित्थे नहीं यूज़ करना। हुण इहदे विच एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो पॉइंट हैगा इफ स्कूल कॉलेज यूनीवर्सिटी बेड चर्च टैंपल हॉस्पिटल prison etc are used in reference to their primary purpose then the it not used, then the is not used। कहंदे भी जिन्ने भी मैं तुहानूं ये दस्से हैं स्कूल कॉलेज यूनीवर्सिटी बैड, अगर ये यूज़ हो रहे हैं एक सेंटेंस दे विच एंड उन्हों दा प्राइमरी परपज़ ही दसिया जा रहा है तो उदों तुसी डेफिनेट आर्टिकल द नहीं यूज़ करोगे। एक नॉर्मल प्राइमरी चीज़ वास्ते द यूज़ करने की लोड़ नहीं होंदी। द असीं यूज़ करते हैं जो असीं किसी स्पैसीफिक चीज़ बारे गल करते हैं। एग्जाम्पल हैगी है स्टूडेंट्स गो टू स्कूल। हुण इहदे विच स्कूल है, स्टूडेंट्स हैं, स्कूल ही जाणगे पढ़न जाणगे, तो उहदे लई मैनूं आर्टिकल द यूज़ करने की जरूरत नहीं है। बट हुण केस आंदा है भी मैं कित्थे यूज़ करा? अगर मैं स्कूल की गल करनी है तो मैं आर्टिकल द फिर कित्थे यूज़ करा? जदों मैं स्पैसीफाई करके कहना, स्पैसीफिक करके कहना, स्पैसीफाइड करके कहना भी किहड़े स्कूल जांदे ने, द स्टूडेंट्स गो टू DAV स्कूल। हुण स्कूल्स तो बहुत सारे ने पर मैं गल की है DAV स्कूल की। सो डिफरेंशिएट हो गया, स्पैसीफिक हो गया, उदों मैं अपना आर्टिकल द यूज़ कर सकती हाँ, अदरवाइज नहीं। पीपल गो टू टैंपल टू प्रे। हुण ऑफकोर्स लोग टैंपल जाते हैं प्रे करने वास्ते जाते हैं, तो मैनूं डेफिनेट आर्टिकल द यूज़ करके स्पैसीफाई करने की लोड़ नहीं है भी लोग टैंपल प्रे करन जाते हैं। बट अगेन सिमिलर केस है, अगर किसी में स्पैशल टैंपल का नाम लवां, सपोजली किसी भी टैंपल का नाम लवां, काली माता टैंपल, तो इत्थे मैं स्पैसीफाई कर सकती हूँ द काली माता टैंपल, क्योंकि मैं बाकी टैंपल्स की गल नहीं कर रही, मैं एक नॉर्मल गल नहीं कर रही, मैं तो स्पैसीफाई करके कह रही हूँ भी काली माता के टैंपल जाते हैं प्रे करने वास्ते, उदों मैं आर्टिकल द यूज़ कर सकती हाँ, अदरवाइज नहीं। तो लास्ट आंदा है द इज़ नॉट यूज बिफोर द नेम्स ऑफ। हुण किना किना अगे द नहीं यूज़ करना? मील्स दे अगे वी नैवर यूज़ द लंच द डिनर या द ब्रेकफास्ट, इट्स ऑलवेज लंच डिनर एंड ब्रेकफास्ट। डिजीज़ अगे नहीं कर सकते, सब्जैक्ट्स अगे नहीं कर सकते, इट्स नॉट द साइंस द मैथ्स, इट्स मैथ्स और साइंस। मंथ्स अगे नहीं कर सकते, डेज, लैंग्वेज, हॉबीज़ या गेम्स। फुटबॉल अगे फुटबॉल, द फुटबॉल नहीं कह सकते। किहड़े केस कह सकते हैं? जो मैं स्पैसीफाई करना हो कि द फुटबॉल मैच इज़ बीइंग प्लेड बिटवीन इंडिया एंड आस्ट्रेलिया, उदों मैं द यूज़ कर सकती क्योंकि मैं स्पैसीफाई किया भी आ दो कंट्रीज़ दे विच मैच खेलिया जा रहा है, पर द फुटबॉल मैच इज़ बीइंग प्लेड वो गलत हो जाएगा, फिर उहदे अगे मैनूं द लगाने की लोड़ नहीं है। सिंपल फुटबॉल मैच इज़ बीइंग प्लेड, दैट्स इट। सो ये सी अपना अज दा टॉपिक आर्टिकल्स। आई होप सारे क्लीयर होएगा, बहुत सिंपल टॉपिक है।
ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਨਿਊ ਟੌਪਿਕ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਟੌਪਿਕ। ਸੋ ਕਰੀਅਰ ਐਜ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਆਲਸੋ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਸ ਫॉर ऑल पंजाब जॉब कोचिंग्स। सो क्लैरिकल होगी, पंचायत सैक्रेटरी, PPSC एग्ज़ाम, पंजाब पटवारी, PSET, मास्टर कैट। सो कोई भी